Yes, hello students. Students, in the unsolved question, there are three different types of questions which are to be solved, which will be solved by me. And the remaining questions, 2-3 questions which are remaining, that are the routine questions which we have done. तो वो आप लोग ट्राई करो, उसमें कोई भी डाउट्स होगा you can call me, okay, you can ask me your doubts. So these three questions which we are solving, these are a little bit different type of question. First question which we are solving, that is unsolved question number 7. In that we have to prepare only trading and profit and loss account. No balance sheet has been asked in the question. तो बैलेंस शीट हमें बनाना नहीं है. इनफैक्ट अगर ट्रायल बैलेंस में इफ देयर आर एनीथिंग विच आर रिलेटिंग टू बैलेंस शीट, एनी असेट लाइबिलिटीज आर गिवन, so we have to ignore that, okay, because we are preparing only two things, that is trading and profit and loss account. So I have prepared the format of trading and profit and loss account in the similar manner, 10-12 lines for trading and remaining for profit and loss account. So prepare the same format. I am reading the question. Let's do the marking. Take out unsolved question number 7. I am reading the question. Satish and Pramod are partners. Prepare trading and profit and loss account and find out gross profit and net profit only. That means you have to prepare only trading एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ओके. तो अलग टाइप का क्वेश्चन है, कर लेते. एग्जाम में चांसेस कम है आने का, बट यू नेवर नो, कुछ भी पूछ सकते हैं. तो वी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग. तो दिस 3 क्वेश्चंस आई हैव आइडेंटिफाइड आर डिफरेंट, तो आई विल बी सॉल्विंग दैट. रिमेनिंग आर द रूटीन क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन, तो यू कैन प्रैक्टिस दैट एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क. ट्रायल बैलेंस दिया है, मार्किंग कर लेते हैं. ओपनिंग स्टॉक TDR, परचेजेस इज TDR, wages TDR, insurance PDR, unproductive wages means indirect wages, indirect expense goes to profit and loss. warehouse rent हमने पहले भी काफ़ी बार कर दिया है, it's a selling expense PDR. carriage outward PDR, sales return less from sales. export duty is relating to sale, selling expense PDR. custom duty, okay, custom duty, that also it's PDR. let us confirm it. sundry debtors is balance sheet asset, ignore that. investment balance sheet asset, ignore that. factory rent, okay, factory rent, factory word is specifically given, so TDR, trading debit. postage and telegram PDR. sales TCR, dividend PCR. purchase return less from purchases. creditors liability ignore. 10% बैंक लोन ignore. बैलेंस शीट वाले पार्ट इग्नोर करेंगे, उसके इफेक्ट्स जो रहेगा, जैसे 10% लोन, 10% is an hidden adjustment, so interest part will come in profit and loss account, so that will come in profit and loss account. One effect. balance sheet aspect is to be ignored. other receipts is sundry income PCR. closing stock TCR and balance sheet asset. बैलेंस शीट वाला पार्ट इग्नोर करेंगे. आउटस्टैंडिंग वेजेस एड टू वेजेस एंड लाइबिलिटी. क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड RDD, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड PNL. तो PNL वाला इफेक्ट दिखाएंगे. बैलेंस शीट वाला एस्पेक्ट यू हैव टू इग्नोर. गुड्स ऑफ 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. फ्री में क्यों देते हैं? एडवर्टाइजमेंट. सो वन इफेक्ट, एनीथिंग रिलेटिंग टू गुड्स, गुड्स आर आउट, क्रेडिट वॉर्ड गोज आउट. TCR and PDR. so goods of 1800 distributed as free sample, TCR and PDR. last, goods of 2000 were sold and delivered but no entry has been passed in the books of account, okay, that is an unrecorded sales. add to sales, add to debtors, okay, so sales में add करेंगे, debtors वाला part ignore करेंगे, okay, but working में you have to show that, because वो RDD bad debt जो भी लेना है, ऐसे ही told you, वो percentage वाला adjustment हमेशा last में करते, तो वो working हमें दिखानी होगी, okay. so that is the question all about. so let us solve the question. सबसे पहले ट्रायल बैलेंस एम्प्टी कहते हैं. ट्रायल बैलेंस आइटम है, वन इफेक्ट. एडजस्टमेंट्स विल हैव टू इफेक्ट. तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक इज गिवन टू यू. ओपनिंग स्टॉक इज 8700. ओपनिंग स्टॉक 8700.
परचेज में रिटर्न्स दिया हुआ है, सो इनर कॉलम 18,300, 18,300 returns are given, so in the inner column. Next is wages. wages में भी adjustment दिया हुआ है, inner column wages कितना दिया है, leave one line, adjustment is given, wages 1,000. इंश्योरेंस कुछ नहीं बोला, इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, पीडीआर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ओके, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम. टू इंश्योरेंस कितना दिया है, 800 रुपया, 800 रुपीज. अनप्रोडक्टिव वेजेस, unproductive, okay, wages, unproductive wages is 1,400. warehouse rent, warehouse rent कितना है, 600. carriage outward is a selling expense, $1,200. carriage outward 1,200. सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, लेस फ्रॉम सेल्स. एक और एक अनरिकॉर्डेड सेल्स भी दिया है स्टूडेंट्स, इनर कॉलम में लिखते, रिटर्न्स इज गिवन. कितना दिया हुआ है रिटर्न स्टूडेंट्स, 600 रुपीज. पैकेट में लेंगे, माइनस करना है. एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेलिंग एक्सपेंस है, 1,400. एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,400. एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है. नेक्स्ट क्या है फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, कस्टम ड्यूटी. आई थिंक सो कस्टम फ्रेट, ओके, that is at the time of purchasing goods, so most probably it would go to trading account, okay, trading account में ट्रांसफर कर लेते हैं. कस्टम ड्यूटी 800. custom freight, okay, that goes to, that are direct expenses. Sundry debtors, okay, that will go to balance sheet asset, that is to be ignored. Investment will go to balance sheet asset, that is to be ignored, okay. Factory rent, factory बोला हुआ ही है, factory word means direct expense. ऑफिस रेंट होता तो पीएनएल में आता था, या खाली रेंट होगा तो पीएनएल में. फैक्ट्री स्पेसिफिकली बोला हुआ है, so all factory related kharcha expenses will go to trading account. Postage and telegram, so postage and telegram पूरी short form चलेगा, एग्जाम में full forms. 400 rupees. So I think so all the debit items are done. Let's go to the credit side. Sales दिया हुआ है 68,000, 68. Dividend it's 2,000. Purchase return is less from purchases, 500. एक साथ में बाद में माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, 500 रुपीज. नेक्स्ट क्या है उसके बाद,
sundry creditors is to be ignored, 10% bank loan is to be ignored. Students, hidden adjustment मैं कर लेता हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग. इंटरेस्ट का एक इफेक्ट विल कम हियर ना टू दी P&L, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. सेकेंड इफेक्ट तो लाइबिलिटी में आएगा, वो तो इग्नोर करेंगे. अच्छा, उधर ब्रैकेट में बोला है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018. आपने लोन लिया 1 जुलाई, तो कितने मंथ्स का आएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा. इधर ही ब्रैकेट में उसका कैलकुलेशन ले लेते हैं. कितनी लोन ली हुई है? 8,000 इंटू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स. ओके, 10% है तो 10/100 ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर हो जाएगा. ठीक है, 10%. सो 0 0 0 0 गेट कैंसिल. 3 3s are 9, 3 4s are 12. बराबर है. 4 1s are 4, 4 200s are 800. ओके, 4 2s are 8 and 2 zeros, and 200 into 3 600. ये अपना शॉर्टकट भी कर सकते हैं. 8,000 का 10% कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 800 रुपीज़. 800 पूरे साल का, तो 6 महीने का उसका आधा 400, 3 महीने का उसका आधा 200. अपने को कितने मंथ्स का चाहिए? 9 मंथ्स का. तो 3 महीना और 6 महीना, 400 + 200, 600 रुपये. और यू कैन कैलकुलेट इन दिस मैनर, विच एवर इज कम्फर्टेबल टू यू. ओके, सेकेंड इफेक्ट विल गो टू लाइबिलिटी, वी हैव टू इग्नोर दैट. तो खाली हमको एक ही इफेक्ट दिखाना है. आई होप सो द कैलकुलेशंस इज वेरी मच क्लियर. Interest on bank loan, hidden adjustment. Other receipts means income by other receipts. It's 1,000. Other receipts is 1,000. ठीक है. So the trial balance is empty. Let's come to the adjustment. Closing stock दिया हुआ है. एक effect will be TCR 15,400. Second effect will go to balance sheet asset. Balance sheet part is to be ignored. Outstanding wages, add outstanding wages में add करेंगे स्टूडेंट्स. कितना दिया है? It's 500. Second effect will be in the balance sheet liability. Second effect is to be ignored. Okay, simple calculation कर लेते हैं. थर्ड वाला एडजस्टमेंट बाद में करता हूँ, पहले फोर्थ कर लेता हूँ. गुड्स ऑफ 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल. Okay, buy goods distributed as free samples. Anything relating to goods goes to trading account. Goods are out, credit what goes out? 1800 रुपया, 1800, 1008. and free में दिया means advertisement, to advertisement. अच्छा, कितना एडवर्टाइजमेंट है? 1800. Goods of 2,000 sold, delivered on 31st March, but no entry was passed in the books. It's unrecorded sales. तो यहाँ पर करता हूँ add to sales, add unrecorded, and add to daters. स्टूडेंट, डेटर्स वाला पार्ट तो इग्नोर करेंगे क्योंकि वो बैलेंस शीट वाला है. ठीक है, बैलेंस शीट हमने बनाया नहीं, हमें पूछा नहीं है. तो सेल्स में दिखा देते हैं 2,000. इसका टोटल करके इसको बाहर कर देंगे. एनीथिंग एल्स? ऑल दी एडजस्टमेंट डन. एक खाली थर्ड एडजस्टमेंट बाकी है, तो अभी उसके लिए एक वर्किंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स डू वन वर्किंग. दिस इज वर्किंग नोट. डेटर्स कितना दिया आपको क्वेश्चन में? डेटर स्टूडेंट्स, sundry debtors, it's 40,000. ध्यान से समझो अभी ये एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स. 40,000 दिया हुआ है डेटर्स. ठीक है, अभी सबसे पहले तो इसमें ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स ना. ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स. तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा. डेटर्स बढ़ जाएंगे हमारे, कितने से बढ़ जाएंगे? 2,000. सो दैट विल बी 42,000. इसमें से यू विल डिडक्ट बेड डेट्स और RDD. बैड डेट कितना दिया हुआ है अभी आपको? 800 इज बैड डेट. सो इट्स 41,200 and then you have to create an RDD, okay, at the rate
3%। स्टूडेंट्स मैंने आपको 10% और 1% सिखाया है। 10% मीन्स 1 0 कैंसिल एंड 1% मीन्स 2 0 कैंसिल। तो 1% हो गया उसका 412, तो 3% कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके दैट इज 412 इंटू 3 2s are 6, 3 1s are 3, 4 3s are 12, it's 1236। ओके माइनस करके डेटर का वैल्यू हमारे कुछ काम का नहीं है, बिकॉज बैलेंस शीट हमें बनानी नहीं है, हमें खाली 3 वैल्यू था। ये 2000 तो हमने ऐड कर दिया सेल्स में। ये बेड डेट और आरडीडी जाकर हम लोग लिख लेते हैं पीएनएल में। तो बेड डेट इज 800 एंड आरडीडी इज 1236। ओके इन एग्जाम्स ऑल्सो यू हैव टू शो द वर्किंग बिलो द मेन क्वेश्चन। आपको ट्रेडिंग पीएनएल पूछा है उसके नीचे आप कर सकते हो, आप ये वर्किंग कॉपी कर लो। याद रखो बेड डेट 800 और आरडीडी है 1236। सो इधर आ जाएगा अपना 2 बेड डेट्स प्लस आरडीडी। 1236 था आरडीडी और बेड डेट कितना था 800। ओके आई होप सो यू कैन व्यू इट। 1236 प्लस 800। आई थिंक सो ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन। क्लोज करते। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, दो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सो फटाफट जाओ एक लास्ट पेज पे टोटलिंग करो, कितना आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करो एंड लेट अस चेक द आंसर स्टूडेंट्स। गो एंड कैलकुलेट।